وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت؟ جی الحمدللہ۔ جی فرمائیں۔ لگایا جائے اس کو کال؟ ہاں لگائیے۔ کہہ رہا تھا کیا اثر کے بعد؟ اثر کے بعد بات کرنے بول رہا تھا کیا؟ نہ معلوم۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیں۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن۔ ہلو۔ ہاں جی ہلو۔ السلام علیکم۔ جی نصیر الدین صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی جی۔ اچھا کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا اچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں بھائی؟ میں پوروی علاقہ مدھوبنی۔ اچھا مدھوبنی۔ جی۔ اچھا اچھا، چلیے بہت اچھی بات ہے۔ آپ کا مسلک کیا ہے؟ مسلک حنفی ہے۔ اچھا اچھا، آپ کی پہچان؟ قاری نصیر الدین۔ نہیں نہیں، مطلب آپ کے جو علماء ہیں وہ بریلوی ہیں یا دیوبندی؟ ارے حنفی ہیں۔ ہاں آپ حنفی ہیں، پر آپ کے جو علماء ہیں جو آپ کے اکابر ہیں جی تو وہ بریلوی ہیں یا دیوبندی؟ سبھی ہمارے علماء ہیں بھائی۔ سبھی علماء ہیں آپ کے؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں۔ ارے کیوں؟ تو کس کو میں کہوں اپنا نہیں ہے؟ جی کس کو میں کہوں اپنا نہیں ہے؟ نہیں میں یہ نہیں بولا، آپ میری بات نہیں سمجھے۔ میں کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ کے اکابر میں ہیں، اپنا ہی سمجھتا ہوں بھائی۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ سب کو اپنا سمجھ رہے ہیں، پر جو ایمان والے ہیں ان کو اپنا سمجھیں گے نا، یہ سب کو اپنا سمجھ لیں گے۔ جی جی الحمدللہ۔ جی ایمان والوں کو اپنا سمجھیں گے نا۔ جی جی۔ اچھا تو آپ مطلب دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں یا بریلی سے؟ دونوں سے۔ دونوں سے؟ ہاں۔ اچھا اچھا، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم غیب کے قائل ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں کیا ہے؟ بول رہا ہوں حضور کے علم غیب کے قائل ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے قائل ہیں؟ ہاں یہ آپ ہیں؟ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی جی، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں۔ علم غیب کے بارے میں ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی حضرت جی۔ آپ کتابوں میں نہیں دیکھتے ہیں؟ کتابوں میں دیکھ لیجیے نا۔ بھائی آپ کا مجھے کیا پتا کہ آپ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، آپ کا تھوڑی کتاب میں لکھا ہے۔ جو اکابرین کا طرز عمل ہے، جو مسلک ہے، وہی میرا بھی ہے بھائی۔ تو آپ کے اکابرین کا کیا طرز عمل ہے؟ ہمارے اکابرین تو میں تو کہا دیا نا، کیا دونوں ہیں، دونوں اکابرین ہیں۔ دونوں؟ جوم پہ کیوں نہیں آیا؟ جوم پہ میٹنگ آئی ڈی بھیجا تھا، آج کہیں نہیں ایگزام دیا؟ دے دینا، جاؤ ابھی موبائل پہ دے دینا ایگزام، ویڈیو کالنگ چاہے آڈیو کسی سے بھی۔ ہاں جی بولیے۔ جی جی جی، آپ ہی سے میں مخاطب ہوں۔ جی جی تو علماء دیوبند کا نظریہ کیا ہے کہ حضور کو علم غیب حاصل ہے؟
आप बेहतर जानते हैं उनके नजरिए को। किन के? आप अकाबिरीन के नजरिए को बेहतर जानते हैं भाई। अरे कम से कम आप भी तो बोलिए हजरत कि आपका क्या नजरिया है? हैं? हाँ हजरत। मैं असल ये कुछ दो चार तो जो है ना मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कौन? इनमें गायब करते हैं, समझे? हाँ। वो मेरा मिजाज नहीं है मुनाजरे वाली। मिजाज नहीं है? नहीं, वैसा मिजाज मेरा नहीं मुनाजरे वाला। और क्योंकि मैं देखते आ रहा हूँ भाई, अब तक किसी ने कामयाबी तक पहुंचा नहीं। नहीं से इल्म गैब पे कहीं बहस हुआ, नूरो बशर पे बहस हुआ, और क्या कहते हैं कि हाजिर और नाजिर पे बहस हुआ, कहीं कुछ नतीजा निकला? अभी तक आपने कुछ भी अपने ताल्लुक से नहीं बताया हजरत। आपका क्या नजरिया है? आप कहीं अपना नतीजा नजरिया निकला? कहीं निकला या नहीं निकला, पर आप तो बताएं ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी हम और आप बात करेंगे, इसका नतीजा ही नहीं निकलेगा। क्या फायदा इतनी ज्यादा मेहनत करने से? आपका जो तो फिर नजरिया ऐसा है। करिए हजरत, तबलीगी जमात वाले जो जमात लेके जाते हैं ना, रोज बेचारे वजन लेके फिरते हैं कंधों पे, है ना, उनको मना कर दीजिए कि क्यों जा रहे हो यार बार बार, क्यों जाते हो यार? मैं मना क्यों करूं? आपने कहा ना फायदा नहीं होता है कुछ भी। मैं कह रहा हूँ मैं मना क्यों करूं? अगर कोई कर रहा है तो करने दीजिए ना, हमको नहीं करना, हम अपना बैठ जाए कहीं। ये तो बात अच्छी नहीं है। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको रोकेंगे? आपको नहीं करना है तो आप बैठ जाए बैठा। मैं भी तो आपसे बात करके अच्छा काम कर रहा हूँ, ताकि मेरा और आपका पता चले कि मैं क्या हूँ, आप क्या है ना। मैं तो पहले ही जवाब में बता दिया, मैं हनफी उल मसलक हूँ। ठीक है, आप हनफी मसलक हैं। हमारे अकाबिरीन और इसके पीछे पढ़ने की जरूरत है। अच्छा, आपने अपनी इज्तिहाद के जरिए से, अपने इल्म के जरिए से जो समझा, जो जाना, आप उस पे अमल कीजिए। मैं अपने इल्म के एतबार से जो समझा, मैं जाना, और उससे मैं अमल कर रहा हूँ। अच्छा हजरत, ये आप सुन्नी हनफी बरेलवी उलमा को, यानी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह को मोमिन मानते हैं या फिर कुछ और? अरे मैंने उनको देखा भी नहीं भाई। ठीक है, आपने नहीं देखा, पर आपकी जमात के कुछ लोग उनके ऊपर तंज करते हैं, क्या आप भी करते हैं? उनसे पूछिए, अगर तंज करते हैं या क्या करते हैं, वैसा मेरा मिजाज नहीं है तंज करने का, क्या समझे? अच्छा, मेरा मिजाज वैसा नहीं तंज करने का। हाँ, आप जो अमल किए, आपने जो किताब में लिखा, कहीं हो सकता हो दुरुस्त हो तो आपको अल्लाह की तरफ से लड्डू मिलेगा भाई। नहीं दुरुस्त होगा अल्लाह के यहाँ आपको असाब होगा, चाहे वो हमारे यहाँ काबिलिन हो चाहे आपके काबिलिन हो। देखिए, क्या समझे? पहचान तो दुनिया में ही हो जाती है ना, के अंदर है ना। जितनी ज्यादा आप लोग मेहनत करते हैं, उतनी ज्यादा जो है ना, कोई इख्तिलाफ के अलावा भी मेहनत नहीं होती है। अच्छा ये बताएं हजरत, जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है या तौहीन? तारीफ करेगा ना। आप थानवी जी को चाहते हैं, थानवी जी के मसलक से ताल्लुक रखते हैं, आप हमा वक्त उनकी तारीफ करते हैं या नहीं? मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपके इमाम या हमारे इमाम नहीं, अब उस बात को छोड़ दीजिए। मैं जो पूछ रहा हूँ, जो कुछ किताब में लिखा, जो उन्होंने अकायद को लिखा, अगर वो अकायद दुरुस्त होगा, समझे, दुरुस्त होगा तो ठीक है, नहीं दुरुस्त होगा तो कोई नहीं अमल करेगा उस पर। अच्छा, आप मौलाना हैं कि खाली हाफिज हैं? अल्लाह का फजल है, मैं आलिम भी हूँ। आलिम हैं? तो आपको ये नहीं पता कि सही चीज क्या है और गलत की चीज क्या है हजरत? जी अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है, सही चीज मुझे मालूम है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपके उलमा ने सही लिखा होगा तो उनको लड्डू मिलेगा, गलत लिखा होगा तो सजा मिलेगी? आपको पहचान नहीं सही लिखा है कि गलत लिखा है? मैं वही तो चाहता हूँ कि वो ले जाना चाह रहे हैं ना आप। हाँ, जिस रुख आप ले जाना चाह रहे हैं जी, समझे, उस रुख का जो है नतीजा मैंने अपनी नजरों से बहुत कुछ देखा है हजरत। फिर वही बात कि आपने जाना नहीं चाह रहा हूँ। ओफो, जी। अच्छा ये बताइए हजरत,
आप अपने मसलक के लोगों के अकीदे पर हैं ना? सुनिए ना, हाँ जहाँ पे बताएं मैं रह रहा हूँ ना, जी। यहाँ पे देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, हाँ अहले हदीस भी हैं, हाँ। जमात इस्लामी भी है, हम्म, देवबंदी भी हैं। हाँ इन सारे ख्यालात के लोग हैं। इन सारे लोगों के बीच एक आदमी 10 साल से रहने वाले का मिजाज आप खुद समझ सकते हैं किस हिसाब से वो रहने वाले होंगे। देखिए, ये तो मुझे पता है कि देवबंदी धर्म के लोग तकैया अपनाते हैं। जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वो अपने पर फैलाते चले जाते हैं। पहले इंसान को जब वो पकड़ते हैं तो अकायद की बात नहीं बताते, सिर्फ अमल की बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। फिर जब वो बंदा उनके कब्जे में आता रहेगा तो फिर वो जो है बिदत से शुरू होंगे कि ये चीज बिदत है, ये चीज नाजायज है, ये चीज हराम है, ये चीज कुरान में नहीं है, ये चीज हदीस में नहीं है। ठीक है, फिर जब वो और उनके कब्जे में आ जाएगा तो फिर जो है बिदत से शिर्क पे आ जाएंगे डायरेक्ट। हाँ, फिर हर चीज जो है वो उनको शिर्क और कुफ्र नजर आने लगती है। शिर्क, बिदत, नाजायज और हराम। देखिए जैसे आप बात कर रहे हैं मुझसे जी, अब तक 2-4 साथी आपकी जो है ना बात किए मुझसे, समझे? अच्छा। तो सबसे पहली बात मैंने उनसे कहा कि भाई देखो मैं मशगूल बहुत रहता हूँ क्योंकि काम मेरे जिम्मे बहुत सारे हैं। हाँ, तो ऐसा कीजिए, आप अगर मेरे मिजाज को, मेरे मसलक को जानना चाह रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे जाइए, अहनाम मीडिया सर्विस है, आप उसमें जाइए, खंगालिए, आपको जो सवाल करना हो देवबंदी मसलक से आप सवाल कीजिए। सवाल तो मैं तो आपसे फोन पर ही सवाल करने आ गया हजरत, वहाँ जाने की जरूरत क्या है? मैं तो आपको डायरेक्ट कॉल पे आ गया हूँ। मैदान नहीं हूँ मैं उसका मैदान नहीं हूँ, आपको मैं मैदान दिखा देता हूँ। आप जाइए उस मैदान में कुश्ती लड़िए। हजरत, मैं आपसे कॉल पर ही जो है बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, ताकि मैं और आप जो भी अकीदा रखते हो एक दूसरे को बताएं। यहाँ घुमा फिरा के बात करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उस पर कब जब सवाल करूं, कब उसको आप देखें, कब आप उसका जवाब दें, नहीं, यहाँ तो हैंड टू हैंड मसला है। समझता हूँ, जैसे आपने कहा आला हजरत साहब को आप क्या समझते हैं, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को आप क्या समझते हैं, मैं समझ गया। ये जुज़इयात वाले इख्तिलाफ में पढ़ेंगे, आप भी दलील देंगे, मैं भी दलील दूंगा, आप ये कहेंगे, वो मैं ये कहूंगा, होते 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 कुछ नहीं होगा, सिर्फ झगड़ा होगा। मतलब अकीदा का तो पता चलेगा ना हजरत कि आपका अकीदा क्या है, हमारा अकीदा क्या। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता। हाँ, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मैं तो प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ। अकीदे के सिलसिले बुनियादी बातें कितनी हैं, इस्लाम की बुनियादी बातें कितनी हैं। हाँ, फरूई इख्तिलाफात में इमामों का भी इख्तिलाफ है, समझे। अब रही बात इमामों का जब इख्तिलाफ है, भाई सुनो भाई, मैंने आपसे कोई फरूई, अरे इख्तिलाफ होगा मौलाना साहब, मैं आपसे कोई फरूई इख्तिलाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अकायद के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने अभी आपसे कोई बात ही नहीं कही है किसी तरह की। आप कह रहे हैं फरूई मसाइल। भाई फरूई मसाइल पर मैंने आपसे कहाँ कुछ कहा है, मैंने तो नाम ही नहीं लिया। मैंने तो इल्म गैब का पूछा कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब तस्लीम करते हैं या नहीं करते हैं। ये फरूई इख्तिलाफ है क्या इल्म गैब का जो मसला है? आप जो है ना, सुनिए ना, हाँ, देवबंदी मसलक को आप जानना चाहते हैं, आप बहुत अरे जानना नहीं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ देवबंदी मसलक को। मैं 15 साल से ज्यादा देवबंदी धर्म में रहा हूँ। जानते हैं ना, तो फिर मुझसे पूछने का जरूरत है। इसलिए पूछने की जरूरत है ताकि क्यों पूछ रहे हैं हजरत, अगर आप बात हो जाए ना। आप लोग जो है ना हजरत, देवबंदी मसलक बदल जाएगा। सुने हजरत, आप लोग जो है ना वो लोगों के सामने दो रुख वाला चेहरा लेके आते हैं, है ना, दोनों तरफ गोल गोल घूमते हैं आपके सामने। आप हजरत दोनों तरफ भी बन जाता हूँ क्या? नहीं, मतलब आप गोल गोल घूमते हैं, सीधी कोई बात ही नहीं करते। जो आपका नजरिया है, जो आपका अकीदा है, समझे हजरत। आपकी जमात के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गोल गोल घूमते हैं, अपना अकीदा बताते ही नहीं है। अजीब हाल है। मैं तो बता दिया ना, एक मैदान है, टेलीग्राम पे जाइए, देखिए कितने लोग वहाँ पे। फिर वही बात हजरत, मैं टेलीग्राम देखिए मसले का इजहार कर रहे हैं, देखिए हजरत, मैं ना टेलीग्राम पे बात करता हूँ, ना व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, ना फेसबुक पे बात करता हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्ट कॉल पे बात करता हूँ। सुना था कि आप जो है हमारे एक हजरत को परेशान कर रहे थे। अच्छा ये बताइए, हाफिज आप हाफिज है ना? मैं परेशान कर रहा हूँ? नहीं, आप हाफिज है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। कुरान तो आपने सुनाया होगा? कुरान सुनाया होगा, मेहराब में, नमाज में, तरावी में।
अल्हम्दुलिल्लाह। बगैर गलती के सुनाया कि गलती आई है? बगैर गलती के सुनाया बगैर या गलती आई है, हाँ ये पूछना चाह रहे हैं? जी हाँ। हाफिज कुरान को कुरान पढ़ने में गलती होती है या नहीं? होती भी है। होती है ना कहीं भूल जाता है ना इंसान। जी 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 जी, ये तो अच्छा, इंसान की खासियत में से है। हाँ। तो शायद एक हाफिज साहब थे या कोई थे भाई, तो उनके पढ़ने में कहीं गलती हो गई थी और उन्होंने अपनी गलती को मान भी लिया, फिर भी आप जो है उस पर बहस किए चले जा रहे थे। हाँ, इंसान की फितरत है, भूल जाता है इंसान। कभी जबान पे नहीं भी आता है। तस्लीम करने के बाद रगेतने की क्या जरूरत है? हम ऐसा तो नहीं किए किसी के साथ। असल में देवबंदी हजरात की ये फितरत होती है, जबर जेर पेश या वैसे भी अगर भूल जाता है आदमी। आप जो कह रहे हैं देवबंदी हजरात की, सारे लोगों को क्यों शामिल कर रहे हैं आप? मैं सारे लोगों से मतलब नहीं, अक्सर मेरा मामला देवबंदी हजरात से पड़ता है और मुझे मालूम है कि वो जरी सारी जो है चीजों को पकड़ते हैं, जरा सारे नुक्तों को पकड़ते हैं, मगर जब खुद की अपनी जो है मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है ना, तो उनको कुछ नहीं मतलब समझते वो। नहीं, अगर कोई सुन्नी हनफी बरेलवी उनको पकड़ता है। पॉजिटिव सोच रखिए। मैं पॉजिटिव सोच रखता हूँ। सोच रखिए। जी मैं पॉजिटिव सोच रखता हूँ और जो है मैं किसी को पर तंज नहीं करना चाहता, ना मैं तंज करता हूँ। और अगर किसी की इस तरह की कोई गलती होती है तो मैं उस पर बहस भी नहीं करता, जिस तरह देवबंदी हजरात बहस करते हैं, मैं नहीं करता, मेरी आदत नहीं है जी। हाँ, बहरहाल मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपका अकीदा, आपका नजरिया क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है या नहीं अल्लाह की अता से, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर व बशर के ताल्लुक से जो आपका अकीदा है? आपकी जमात के लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बशर है, नूर नहीं है। आपकी जमात के लोग कहते हैं माज़अल्लाह के गैरुल्लाह से मदद मांगना ये नाजायज और हराम और ना जाने क्या क्या बताते हैं, समझ रहे हैं हजरत? तो इस तरह के बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। या हाजिर और नाजिर के ताल्लुक से कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर नहीं है। जो आप कह रहे हैं ना ये इख्तिलाफ है, हाँ उस इख्तिलाफ को अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जानता हूँ अच्छी तरह से। हाँ, तो आप क्या मानते हैं? अब रही बात जो दो टूक में आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं ना जी, आप जाइए अहनाफ मीडिया सर्विस में, फिर वही बात, मुझे कहीं जाने की जरूरत हजरत, मुझे जाने की जरूरत क्या है? मैं आपसे हम कलाम हूँ। का मतलब क्या? हाँ। मैं आपसे अभी प्रेजेंट में हम कलाम हूँ, अभी हाल में कल हम कलाम हूँ आपसे जी। तो आप यही जवाब दे दीजिए हजरत। अगर किताब नहीं है तो किताब खोल लीजिए, किताब देख लीजिए, उठा लीजिए, किताब से जवाब दे दीजिए। क्या आप पूछना चाह रहे हैं भाई? आप तो हंस रहे हैं यार हजरत। मतलब जो आपका अकीदा है, जो आपका नजरिया है, सब कुछ मालूम है आपको। किस चीज के बारे में आप पूछेंगे, क्या हमको फिर सवाल करेंगे, सब कुछ मुझे मालूम हो रहा है। आपको मालूम हो रहा है क्या होगा, ये सब कुछ मुझे मालूम है। आगे होगा कुछ नहीं, आगे होगा कुछ नहीं, सिर्फ आपके अकीदे का पता चलेगा। आगे कुछ नहीं होगा, सही बात है। झगड़ा के अलावा और नहीं के अलावा मैं झगड़ा नहीं करता, मेरी आदत नहीं, झगड़ा करने की मेरी आदत नहीं है। जी 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 नहीं, समझ रहे हैं जरा? अच्छा ऐसा कीजिए ना, बोले। ऐसा कीजिए आप आप भी तैयारी, अल्लाह का फजल है, आप तैयार होंगे, समझे? हैं? अभी मैं वक्त अपना निकालूंगा किसी टाइम। आप अपना वक्त निकाल लीजिए और टॉपिक रट लीजिए। अभी बता दीजिए, आप टॉपिक को रट के लेकर आना, याद करके लेकर आना, ठीक है? और सारे सबूत इकट्ठे करके लेकर आना। जिस टॉपिक पे आप चाहेंगे इंशाल्लाह, टॉपिक भी आपका होगा, वक्त भी आपका होगा। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। किस टॉपिक पे बात करेंगे बताएं? किस टॉपिक पे बात करेंगे? मैं समझना चाहूंगा आपसे। जी बताएं। नूर व बशर के बारे में, अच्छा, इल्म गैब के बारे में, अच्छा, हाजिर व नाजिर के बारे में। हाँ। जो आमतौर पे इख्तिलाफ है आपसे, तो वही पूछूंगा। कहीं हो सकता है आपके जरिए से मुझे मालूम हो जाए। हाँ, मतलब किसी एक टॉपिक को चुन लीजिए। उस सिलसिले में जितने भी सवालात मेरे ज़हन में होंगे, वो सारे सवालात आपसे मैं करूंगा। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। आप हर सवाल कीजिए, आप हर कुछ पूछिए उस अकीदे से, ठीक है? आप तैयार हैं ना? हैं? आप तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह जी मैं तैयार हूँ। और
آپ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या नजरिया रखते हैं? आप अपना अकीदा बता दीजिए। पहले किस मौजू पे बात करेंगे, कौन से अकीदे से शुरू करेंगे, बता दीजिए। और एक ही पे रहना, ठीक है? जो भी आप मौजू छेड़ें उसी पे रहना है, इधर उधर नहीं भागना है। फिर पहले एक पर मसला हल करेंगे, फिर बाद में दूसरे पे जाएंगे। हाँ, सिर्फ इल्म गैब ही की बात किया हूँ, आप इसके चैट से जो है ना देख सकते हैं। अच्छा, सिर्फ इल्म गैब पर ही बात करेंगे अभी? सिर्फ इल्म गैब ही पर बात किया था, वो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं अब किस पे बात करेंगे? अब बोलें, अब किस पे बात करेंगे? मैं तो कह दिया ना, इल्म गैब, हाजिर नाज़िर, नूर व बशर, समझे मेरे भाई? ये कई मौजू हो गए, सिर्फ एक मौजू को आप चुनिए अभी। इल्म गैब ही पे मैं बात करूंगा पहले। अच्छा, अभी इल्म गैब पे बात करेंगे। अभी देखिए, बात नहीं समझे मेरी, वक्त में फारिग करूंगा। अच्छा, कभी और के बारे में मालूम करूंगा। अच्छा, कभी और बात करेंगे। आप तो पूछ रहे थे कि आप तो पूछ रहे थे मुझसे कि आप तैयार हैं? मैंने कहा मैं तैयार हूँ। आप तो अभी के लिए कह रहे थे ना तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। आप तैयार हैं ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि अगर वीडियो कॉलिंग करते ना तो मैं दिखा देता अभी इधर से। कोई बात नहीं है, नहीं मैं देखिए, आप अगर तैयार नहीं हैं तो मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। जब आप तैयार हो जाएं, जब आपको वक्त मिले, आप अपना मुकर्ररा वक्त बता दीजिए, कब बात करेंगे? जी। हाँ, बताएं कब मिलेंगे, कब बात करेंगे? मैं आपसे कॉल करके मैं कह दूंगा कि फला वक्त में फारिग हूँ। आप चूंकि हम वक्त तैयार ही हैं, क्या समझे? इल्मी बहस होगी, अल्लाह करे मुझे। हाँ, बिल्कुल इल्मी बहस होगी इंशाल्लाह। ठीक है, कोई इधर आधर की कोई बात नहीं होगी। इधर उधर की कोई बात नहीं होगी जी, नहीं। कोई एक ही टॉपिक को समझेंगे पहले। हाँ, किसी एक टॉपिक को चुनिए, बताइए कौन से मौजू को चुनेंगे आप? हाँ, इल्म गैब ही पर पहले बात होगी। अच्छा, चलिए ठीक है, इल्म गैब पर ही बात होगी। ठीक है, इल्म गैब ही पर बात होगी। अच्छा, कब बात करेंगे? अभी टाइम बता दीजिए। टाइम? जी, टाइम मैं आपको बता। आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं? ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, जब जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं तो मैं टाइम बता दूंगा। हाँ, ठीक है, कल 2 बजे करें एकदम संजीदगी से। हाँ, देखिए, हमारा मिजाज ये नहीं कि हम आप बरेलवी हैं तो हम आपको देवबंदी बना दें, समझे? मेरा मिजाज ये नहीं। हाँ, हम बनेंगे भी नहीं, क्योंकि हम देवबंदियों में फंस गए थे, हम निकल आए हैं, हम जान गए हैं, हम बनेंगे भी नहीं देवबंदी। ये तो आपकी सोच गलत है। आप देवबंदी पहले थे? मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि मैं खुद 15 साल से ज्यादा देवबंदियों में रह चुका हूँ। देवबंदी लोग जो है हाँ गलत हैं, बातिल हैं, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया जी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप हंस रहे हैं, हंसी में मत टालिए बात को। देखिए, आपने इल्म गैब के ताल्लुक से बात करने को कहा है, और अब बस आप वक्त बता दीजिए कब बात करेंगे। कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे? कितनी उम्र में आपने देवबंदी छोड़ा? लगभग मेरी उम्र होगी कम से कम 22-23 साल के आसपास उस वक्त। 22-23 साल। हाँ, आप अपनी भी जरा लियाकत बता दें, सलाहियत। अरे भाई, हमारी सलाहियत क्या, हम तो समझ लीजिए 0 बटा 0 हैं, 2 कौड़ी के इंसान हैं। हम तो सिर्फ वफादार रसूल हैं। तहदीस नेमत के तौर पे मैं देवबंदियों में हिफ्ज करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मुताले से होता है। के तौर पे आप अभी हैं क्या? अभी अब मैं सादा इंसान हूँ, एक ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ भाई, एक मजदूर इंसान हूँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उलमा की सोहबत से मुझे इतना इल्म हासिल है कि देवबंदियों के बड़े बड़े मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन के सामने झाग छोड़ते हैं, धूल चाटते हुए नजर आते हैं। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने जो बोला है वो हकीकत है, मगर इसको सुन के घबरा ना जाइएगा। आप आलिम हैं? मैं आलिम नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, अवाम में से हूँ, ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। अरबी लाइन से आप पढ़े हुए हैं? मैं कुरान पाक पढ़ा हुआ हूँ। अरबी लाइन से आप पढ़े हुए हैं? अरे भाई, मैं कुरान पाक पढ़ा हुआ हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कुरान पाक की तफसीर सुने है। अरे हजरत सुने, जो आपका अकीदा, देखिए अकीदा दुरुस्त रखने के लिए आलिम होना जरूरी है। सुनिए, एक बात मैं बता देता हूँ। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल बताइए। सबसे पहले आदमी मुकाबला करने के लिए अपने जो है ना मुखातब को देख ले। बिल्कुल, देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुखातब देखे हुए हैं।
न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, किन से? देवबंदियों से। न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये आपकी पहले ही मन की सोच है, हम मैं समझ गया आपको। नहीं। अब रही बात, देखिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप आलिम हैं? नहीं हूँ मैं आलिम, पढ़े हुए हैं? मैं आलिम नहीं हूँ, मैं देवबंदियों में पढ़ा था। कहाँ तक पढ़े आप? अरबी लाइन से कहाँ तक पढ़े? मैंने बताया ना कि मैं उर्दू पढ़ा हुआ हूँ, और अरबी जो भाषा बोली जाती है, ठीक है, वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ कुरान अरबी पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकायद के ताल्लुक से इंशाअल्लाह देवबंदियों के बड़े बड़े मुफ्तियों को शिकस्त देता हूँ। इस बात को सुनकर घबराइएगा नहीं सुनकर। हिंदू मत मजहब सबको भी शिकस्त दिए हैं। किसको? हिंदू मत, हिंदू हदीस, जमात इस्लामी, इन सबसे भी आपका पाला पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों से पढ़ता रहता है। मगर जो आपके अहले हदीस भाई हैं, वो ना कुरान को मानते हैं, ना हदीस को मानते हैं, और ना किसी आलिम को मानते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है, ठीक है, कहते हैं हमारे लिए कुरान और हदीस हुज्जत है, हालांकि वो कुरान और हदीस को मानते ही नहीं है। आप आलिम नहीं है ना? अरे भाई फिर वही बात, मैं आलिम नहीं हूँ, मैंने बताया ना, ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। अरबी लाइन से फारसी पढ़ा है, अरबी अव्वल। फिर वही बात, जब मैंने कह दिया, वो भी तो बताइए हजरत, जब मैंने कह दिया, मैंने बोल दिया, फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है, बताइए। जब इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर और क्या समझ पाएंगे? 0 सन्नाटा है। बिल्कुल 0 सन्नाटा हूँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद के मुफ्तियों को, देवबंद के बड़े बड़े मुफ्तियों को धूल चटा चुका हूँ। ये मत कहिए कि मुकाबला करने आए, मैंने मुकाबला करने नहीं आया। समझ गए। देखिए भागिएगा नहीं, इस बात से कोई भी फायदा हासिल नहीं होगा। हाँ, हम अपने वक्त को जाय नहीं करते हैं। क्या डर गए हो तुम, भाग गए हो, तुम्हारे मुफ्ती उमर कासमी को इल्मे गैब पर ही मैंने धूल चटाई है, झाग छुड़ा दी है मैंने उसको। मुफ्ती उमर कासमी की गुफ्तगू सुन लीजिएगा। मैं समझ रहा था कि आप घबरा जाएंगे। तौबा नहीं, जब आप देखिए, मैंने बताया ना कि मौजू भी आपका रहेगा, वक्त भी आपका रहेगा। मेरे अंदर कुछ है, तब मैंने आपको ये बोला है। मेरे उलमा ने ऐसा लिख देता था अरबी में कि उसका मतलब खुद कहते थे कि आप वाज़ेह कीजिए। कौन समझे? क्या बोले? अब आपको भी कोई अरबी में लिख दूंगा या किसी चीज की फिर वही बात, एक मिनट, कहेंगे कि भाई अजीब हाल है, जब अरबी लाइन से पढ़े नहीं तो अरबी कैसे जानेंगे? इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये आपकी राह फरारी है। मैंने कम से कम, एक मिनट, मैंने टाइम देखूं कितना टाइम हो गया है आपसे बात करते हुए। 27 मिनट बात करते हुए हो गए हैं, और अभी भी काम की कोई बात नहीं हुई है। मैंने आपसे कहा था, सुनिए, मैंने आपसे कहा था कि मौजू आपका रहेगा, वक्त आपका रहेगा। जो मौजू चाहे आप चुने, चाहे इल्म गैब हो, चाहे मसला हाजिर नाजिर हो, चाहे नूर बशर हो, चाहे गैरुल्लाह से मदद करने के ताल्लुक से जो आपके नजरियात हैं गलत, चाहे वो हो, कुछ भी अकीदा हो आपका, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंदियों के घर से उनको शिकस्त देता हूँ। शिकस्त फाश। आप तकब्बुराना चाल नहीं, तकब्बुर मैं नहीं करता। इस तरह तकब्बुर वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं। तकब्बुर तो आपने किया। सुनिए, तकब्बुर आपने किया था। मैं कहा कभी देवबंदी को अभी आपने कहा था कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। सुनिए, अभी आपने मेरे इल्म को देखकर कहा, चाल चला नहीं, आपने कहा मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करता, और मैं आपसे पहले ही कह चुका था कि घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। आप कह रहे हैं कि हम ड्राइवर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं हूँ, मैं अपने देखिए सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें सच्चाई है, झूठ नहीं है। तकब्बुर नहीं है। क्यों इस तरह तकब्बुर नहीं है भाई। देखिए एक मिनट, आप किसी एक मौजू को अभी चुनिए और गुफ्तगू शुरू कीजिए। इस तरह की लायानी बातों से हजरत, इस तरह की लायानी बातों से कुछ नहीं होगा, ठीक है। पता जब चलता है जब इंसान मैदान में उतरता है, ठीक है। आप अपना अकीदा रखिए, मैं अपना अकीदा रखता हूँ, इंशाल्लाह मैं आपके घर से आपको शिकस्त दूंगा। किसको उस वक्त पता चलता है, अभी न ये कि पहले आप कह जाए कि पहलवान को भाई मैंने इतने पहलवान को पटक दिया। इसीलिए तो हम कुछ नहीं कहते। अजीब हाल है। हाँ, हाल अजीब है नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। आप शुरू कीजिए गुफ्तगू। इस तरह बात जो है ना, एक आलिम या एक
संजीदा मिजाज लोगों की बात नहीं होनी चाहिए इस तरह। अरे भाई मैंने आपको कौन सा बुरा कह दिया है? मैंने तो कहा कि आप बात को शुरू कीजिए, गुफ्तगू को शुरू कीजिए। इतना टाइम हो गया है क्या आप किसी भी अकीदे को चुनते तो इतनी देर में बात नहीं होती? अरे यार आप बिजी हो तो फिर इतना टाइम कैसे दे दिया आपने? और आप कह रहे हैं मैं बिजी हूँ, ये हूँ वो हूँ। मेरे सामने किताब है, आधा घंटा समझता हूँ कैसी बात होगी आगे चल के और उसका नतीजा भी कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आपको इल्म गैब है? मैं आपकी बात ही से समझ रहा हूँ। अच्छा, आपको पहले ही पटक दिए। सुनिए आपको सुनिए आपको इल्म गैब है? हमको भी पटक दिया आप। सुनिए आपको इल्म गैब है? आप मुझको भी आप देख रहे हैं आगे की बात, मुस्तकबिल की बात आप देख रहे हैं। हजरत सुने आपने कहा मैं देख रहा हूँ, आप क्या मुस्तकबिल की बात को जानते हैं? आप मुस्तकबिल की बात को जानते हैं? मैं अपने अंदाजे से कह रहा हूँ। फिर वही बात कि आप अपने अंदाजे से कह रहे हैं, आपको इल्म गैब हो गया। आपने पटक दिया, मुझको भी पटक दीजिएगा। अरे हजरत आप क्या हैं? आपके बड़े बड़े मुफ्तियों को धूल चटाइए। जाहिर बात है ये शैतानी। अच्छा ये बताइए आप मुफ्ती उमर कासमी को जानते हैं? किसको? मुफ्ती उमर कासमी को। अरे मैं क्यों हमको बनाना चाहना, छोड़िए ना उसको। अरे वो आप ही की जमात का बहुत बड़ा मुनाजिर है। मेरी जमात के एक ही नहीं है, बहुत हैं। अच्छा आपकी नजर में आपका कोई बड़ा मुफ्ती है? हमारी नजर में आप भी बड़ी मुफ्ती है भाई। नहीं हम तो नहीं है, मैं तो एक छोटा सा एक अदना सा इंसान हूँ। कितने मुफ्तियान को पटक दिया है, किस तरह। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जाके जो है आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। तौबा कीजिए, आप तौबा कीजिए, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, तौबा बाद में कराइएगा। ठीक है यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, अगर आपको भी पसीना ना आ जाए सुन के तकरीर करना। बहुत यूट्यूब देखते हैं। बहरहाल आप जो है ना सुनिए ना। बोले। मैं इल्म गैब को जानना चाहूंगा आप ही से, समझे? अभी मेरे सवालात होंगे, आपके जवाबात होंगे। भाई सवाल आप भी करेंगे, सवाल मैं भी करूंगा। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है? हाँ क्यों नहीं। हाँ इंशाअल्लाह बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से बात होगी, बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू होगी। ये इत्मीनान दिलाने का कि आपकी बात जो है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो पहले आप कहते हैं कि मैंने इसको धूल चटा दिया उसको, तो आप घबराइए नहीं भाई। आपने मुतकब्बिराना नहीं, मैंने मुतकब्बिराना नहीं कहा है। आप ये मत समझिए, मैं तो एक बहुत छोटा सा अदना सा इंसान हूँ। अगर मेरे अंदर तकब्बुर होता तो मैं ये नहीं कहता कि मैं ये हूँ वो हूँ। मैं तो अपने आप को कहता मैं तो बहुत बड़ा आलिम हूँ, समझे? मैं आपको ये बोलता ही नहीं। मुतकब्बिराना बात बोलने ही से पता चल गया कि नहीं जो मेरी हकीकत है, सुनिए जो हकीकत थी मैंने उसको बयान कर दिया। मैं आलिम नहीं हूँ, मैंने आपसे छुपाया नहीं, मैंने बताया नहीं मैं आलिम हूँ, ठीक है? मैं आलिम नहीं हूँ। आपने बोला कि आप आलिम है, मैंने कहा नहीं मैं आलिम नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है? जो सच्चाई थी मैंने बताया, और जो सच्चाई ये थी कि मैंने आपकी जमात के बड़े बड़े मुफ्तियों को धूल चटाई है। सुन के घबरा ना जाइएगा। कितने लोगों को आपने बरेली बनाया? फिर वही बात, बरेली तो जितनों को बनाया वो तो एक अलग बात है, ठीक है? मैं तो सुनिए ना, मैं तो सुनना चाह रहा हूँ, आपने किसी को बरेली भी बनाया मुफ्ती? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। इसको है अब मैं तुम्हें हाँ बिल्कुल कोई नज़ीर है? बिल्कुल कुछ तो मेरे जी कुछ मेरे आलिम को आपने सुनिए कुछ मेरे गांव में ही हैं जो कि दूसरी जमातों से ताल्लुक रखते थे, कॉन्टेक्ट रखते थे, उनको मैंने उस जमात में जाना छुड़ाया। मैंने कहा ये लोग बदतरीन हैं, दुश्मनाने रसूल हैं, गद्दार रसूल हैं, इनमें ना उठो, इनमें ना बैठो, इनसे दूर रहो। उन्होंने इस बात पर अमल किया, मैंने उनको बहुत कुछ बताया, किताबें दिखाई, ठीक है? आज अल्हम्दुलिल्लाह वो उनमें बैठना तो दूर की बात, उनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। और दूसरी बात, एक आगरे में हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, आमिर भाई, ठीक है? उनके यहाँ एक मौलवी मुबीन है, उसने लोगों को बेवकूफ बनाए हुए रखा था, लोगों को वो नमाज भी पढ़ाता था, लोग उसके पीछे नमाज भी पढ़ते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग उसके पीछे ना तो नमाज पढ़ते हैं, ना उसका चेहरा देखना पसंद करते हैं, उससे दूर रहते हैं कि तो दूर अरे यार अब सुन तो लीजिए, मैं एक एक करके बताऊं। अभी आप कह रहे थे बताइए, अब मैं जब बताने लगा हूँ तो आप सुनने को तैयार नहीं है। आप सुन तो लीजिए। घर की मिसाल दे रहे हैं, फिर वही बात, मैं देखा नहीं हूँ। आप कहाँ के हैं? आप कहाँ के हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश बरेली शरीफ के पास से हूँ। कहाँ के?
डिस्ट्रिक्ट रामपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश। हाँ, बरेली शरीफ के पास, मुरादाबाद, रामपुर। मुरादाबाद का नाम सुना है? मुरादाबाद सुना? हाँ हाँ जी जी, मुरादाबाद, बरेली शरीफ, रामपुर। एक मदरसा भी है, मदरसा शाही। कोई मुफ्ती की नजीर नहीं दे सकता है, किस मुफ्ती को आपने बरेली बनाया? फिर वही बात कि किस मुफ्ती को बरेली बनाया। अरे आपके तो बड़े बड़े मुफ्ती, अरे आपके तो बड़े बड़े मुफ्ती जो है अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी हनफी बरेलवी में आए हैं, समझे? मैं काफी है, मैंने नहीं बनाया है, मैंने नहीं बनाया उनको, हमारे उलमा ने बनाया है। ठीक है, मैं आपसे बेवजह कहूँ, सुने हजरत, सुने, आप जो कह रहे हैं धूल चटा दिए, तो धूल ही खाली चटाएगी, किसी को बरेली भी बनाए। ओहो, देखिए अबू जहल को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है इतना समझाया कि शायद उसके बराबर किसी और को समझाया हो, मगर उसकी समझ में ना आया। मालूम है ना अबू जहल को? हाँ हाँ, मगर देवबंदी हजरात अबू जहल से भी बड़े मक्कार हैं। किसको बनाया, किस मुफ्ती को? खाली धूले चटाए क्या और आ जाते हैं? देखिए सुने ना, मैं क्या कह रहा हूँ उसको सुनिए। तो ठीक है, इल्म गैब से जो है ना मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। तो टाइम तो बता दीजिए, अभी तक टाइम नहीं बताया आपने कि कब करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, एक हफ्ते में करेंगे, 2 हफ्ते में करेंगे। देखिए आप जो हमा वक्त बोले हैं ना, हाँ कि हम खाली हैं, मैं हमा वक्त खाली नहीं हूँ, मैं इसके लिए टाइम। अरे भाई खाली तो मैं भी नहीं रहता, कभी आप ये समझ रहे हो कि मैं बहुत खाली हूँ, मगर इन कामों के लिए मैं 24 घंटे खाली हूँ। आपने ही तो कहा, आपने ही कहा इस काम के लिए मैं 24 घंटे खाली रहता हूँ, अपना काम छोड़ देता हूँ मैं। जी तो आप खाली रहिए ना, मैं अपना वक्त बताऊंगा, बस हो गया। तो मैं वही तो कह रहा हूँ हजरत, तो बता दीजिए ना अभी फिर और मत लीजिए, टाइम खाली कीजिएगा। देखिए टाइम निकालने से टाइम निकलता है। आप अपना नंबर दीजिए, आप अपना नंबर दीजिए, लिख लीजिए, आप अपना नंबर दीजिए, लिख लीजिए 790। 1 मिनट बताइए आप नंबर। 790। 790। हाँ, अरे इसमें बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। हाँ, 790 790 681 681। हो गया जी? अच्छा हाँ, 790 681। हाँ हो गया जी हाँ। अच्छा 40 54 54 जी। 54। नाम क्या लिख दूं आपका? नूर हसन। नूर हसन। ये हसन किसी का नाम है, आपका ये नाम क्या क्या मतलब है? क्या मतलब है? नूर हसन का मतलब? हाँ तो नूर हसन का मतलब नहीं जानते? बताइए ना। हसन जो है वो नबी के, जानूंगा ही मैं आपसे, ज्यादातर जानूंगा। ओहो, इमाम हसन जो है वो नबी के नवासे हैं और वो नूर हैं। वो नूर हैं। हाँ, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर हैं। हाँ, हुजूर को नूर मानते हैं ना आप? चलिए, हुजूर को नूर मानते हैं ना? कि नहीं, वो दूसरा टॉपिक है। इनमें गए फिर बात होगी। अरे यार, कभी कहीं भागते हो, कभी कहीं भागते हो। चलो बहरहाल, ये तो मेरा नाम है बहरहाल। जी जी जी, ये तो मेरा नाम है और ये इमाम हुसैन की मोहब्बत में मेरा नाम है। हाँ, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। यानी मेरे आका ऐन नूर हैं और मेरे नबी का जो घराना है वो नूर ही है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, समझ रहे हैं? हाँ, सादाते किराम को बोला है। आप
तैयार रहें, इंशाल्लाह मैं अपना वक्त निकालता हूँ। अरे मैं तो तैयार हूँ, पर आप अभी अपना वक्त कहाँ बता रहे हैं जनाब? मैं उसी वक्त, सुनिए, तो अभी वक्त नहीं दूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना हजरत कि जिस वक्त आप खाली हों, फ्री हों, मैं खाली ना हूँ, मैं भी उस वक्त अपना वक्त निकालूंगा ना। कोई मेरा काम करने का होगा तो उस वक्त तैयार है। आपने खुद कहा कि मैं इसके लिए जब भी आप कॉल करेंगे मैं तैयार रहूंगा। तो फिर फिर इसमें आपके लिए कल मत कीजिए, आसानी हो जाएगी ना कि मैं भी उस वक्त तक काम को अपने निपटा लूं। ये तो फिर बात आपकी अच्छी नहीं हो रही है, ये तो धोखा देने वाली बात हो रही है। और आप इसलिए नहीं बता रहे हैं कि शायद वादा खिलाफ, सुनिए, आप इसलिए नहीं बता रहे हैं कि शायद वादा खिलाफी ना हो जाए। मैं वक्त आपको दूंगा, समझे? तो अभी दे दीजिए ना, ताकि मैं बाद ही में फिक्स करूंगा। अच्छा, बाद में चलिए फिर, मतलब ये तो बता सकते हैं ना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? आज हो गया आपको सर मैं वक्त निकालता हूँ, आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, आप अपने दलील और सबूत पूरे जब तक इकट्ठे ना कर लें कॉल नहीं करना। दलील और सबूत इकट्ठे में करना है? हाँ, नूर हसन का चैलेंज रहता है, मैं बगैर उसके बात नहीं करता। मैं तो खूब जो है मजबूत कर देता हूँ सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आपने इतनी बात है कि खाली मिसाल में शेर पेश कर रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं। अरे भाई, मैं समझा रहा हूँ आपको, कभी आप ये कहें कि मैंने मौजू नहीं देखा, समझा नहीं, मैंने किताबें नहीं देखी, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। शेर मिसाल में नहीं चलेगी, समझे? मैंने शेर नहीं कहा है हजरत, मैंने शेर नहीं कहा है, मैंने कहा है कि अपने मौजू को रट के लेके आना। साबित कर रहे हैं, नूरो बशर साबित कर रहे हैं। तो मेरे आका को आप नूर नहीं मानते? अच्छा, किस मौजू पे? अच्छा ठीक है, बहरहाल मुझे नहीं पता कि आप कौन सा मौजू चुनेंगे उस वक्त। जो मौजू आप रट लें, खैर कोई बात नहीं, जो मौजू आप, जिस मौजू का आप रट लें उसी पे बात कर लेना, ठीक है? मैं तो देवबंदियों को चैलेंज करता हूँ कि वक्त भी तुम्हारा, मौजू भी तुम्हारा, वक्त भी तुम्हारा, मौजू भी तुम्हारा। ये मैं रटूंगा कि क्या करूंगा, हाँ, ये आप नहीं जानते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है। मैं आपको वक्त दूंगा, समझे, लेकिन संजीदा मिजाज से आप बात करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह आप बात हो रही है, उठा पटक, पहले ही पटक के आप भाग जाएंगे। नहीं भाई, मैं कुछ भी नहीं मैं देखिए, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, न उठक करूंगा न पटक करूंगा। पटक दिया, धूल चटवा दिया, ये क्या हो क्या, यही मुझको अच्छी नहीं लगी। बहरहाल जो मैंने हकीकत थी वो आपको जाहिर की, और मैंने ये भी कहा कि आप सुन के डर ना जाइएगा, घबरा ना जाइएगा। हकीकत की बात होती है, उसको छुपा के आप रखें ना। तो समझे, आप क्या कहते हैं, फन को और बढ़ा दे, आपको मेरी तरफ से दुआ है। खैर, आप अपनी धड़कनों को थोड़ा काबू में रखें, है ना? अपनी धड़कनों को काबू में रखिएगा। अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा इस सिलसिले में। कोई बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ कि आप काबिल आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम हैं आप, इसीलिए आपको याद किया है कि आप जो है माशाल्लाह मजबूत तरीके से बात करेंगे। आलिम के सामने इस तरह नहीं बात करने की। अच्छा, इंशाल्लाह मैं आपको वक्त दूंगा, समझे? वक्त ही नहीं दे पा रहे हैं आपको मैं वक्त में बाद में फोन करके मैं दूंगा, ये बार बार कह रहा हूँ। आप ये मत कहिए कि सारी दलीलें इकट्ठे कर लें, ये सब भी जो है ना मुतकब्बिराना चाल है आप। नहीं, मैं तो चेतावनी कर देता हूँ, मैं समझा देता हूँ, कभी आप कहो कि हमको आगाह नहीं किया। मैं आगाह कर रहा हूँ आपको। अरे आगाह क्या कीजिएगा, जिस तरह मैं बात किया हूँ कि मैं गैप पे बात करूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपसे इल्म गैब पर बात करने के लिए राजी हूँ। अच्छा, ये बता दीजिए, कुरान और हदीस को आप मानते हैं? अभी ये शुरू कीजिए क्या बात? नहीं, सिर्फ अब पूछ लेता हूँ, बाकी जब बात शुरू होगी तो हो जाएगी। आप कुरान और हदीस को मानते हैं? बुनियादी बात रखना चाह रहे हैं? नहीं, मैं मतलब पूछ लेना चाहता हूँ ना। देखिए, मैं भी फिर सबूत देख लूँ ना। नहीं हजरत, अगर आप कुरान हदीस को मानते हैं तो मैं कुरान हदीस के हवाले भी पेश करूंगा, और अगर आप कुरान हदीस को नहीं मानेंगे, अपने घर के बुजुर्गों की किताबों को मानेंगे, तो आपके घर के बुजुर्गों की किताबें पेश करूंगा, ठीक है? बुजुर्गाने दीन के अखबार को मानेंगे तो मैं बुजुर्गाने दीन के अखबार को आपके सामने पेश करूंगा। हम बुजुर्गाने दीन की बात जो है ना, हाँ, कोई भी बुजुर्गाने दीन, आप जो कहना बुजुर्गाने दीन की बात आप कीजिएगा, क्या कीजिएगा, हमारे बुजुर्गाने दीन या आपके बुजुर्गाने दीन, हाँ, मिसाल में क्या पेश करते हैं ये सब समझ रहे हैं सारे लोग। अच्छा, कौन समझ रहे हैं ना? आपने अब तक बात किए हैं, शेर मिसाल में पेश कर रहे नूर बशर का,
और मुझसे पूछ रहे हैं कुरान और हदीस की मिसाल। हजरत तो आपने तो जवाब ही नहीं दिया। मैंने पूछा कि आप कुरान हदीस को मानते हैं, आपने हाँ ना में जवाब ही नहीं दिया। कुरान हदीस हाँ समझे, इजमा उम्मत हाँ और कियास, इन चारों को मैं मानता हूँ। माशाल्लाह सुभान कह अल्लाह, दिया ना, बड़ी दोस्तों अच्छी बात है। जुबान तब तो आप अपने बुजुर्गों की हाँ। किताबों को भी मानते होंगे। मेरी बुजुर्गों की किताब क्या है, आप क्या पूछ रहे हैं भाई? मैं तो कहा हजरत क्या ना, आपने इजमाई जो उम्मत कहा शरीयत ना, का तो मदद, आपके आलिम भी इजमाई उम्मत में आते हैं ना। आपके आलिम नहीं आते हैं? तो हमारे बताइए। आलिम तो आते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके आलिमों का पूछ रहा तो हूँ फिर क्योंकि छोड़िए ना आप, फिर उधर उधर क्यों जा अच्छा रहे हैं आप? चलिए उसी वक्त बात होगी, ठीक है। मैं कह दिया ना, शरीयत ठीक। का मदार जिन चीजों पे है, जी कुरान हदीस इजमा उम्मत और कियास, हाँ इन्हीं चारों पे बात होगी। चलिए ठीक है इंशाल्लाह। रखें इंशाअल्लाह। फोन। हाँ रखिए, मैं आपको टाइम दूंगा बाद। ठीक है, मैं आपका इंशाअल्लाह। इंतजार करूंगा आपके कॉल का, ठीक है। जी जी जी, क्यों नहीं। हाँ और ये मेरा आपने जो नंबर दिया ना उसी नंबर पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना नाम लिख के भेज दीजिए। कौन व्हाट्सएप नंबर है? यही जो मैंने आपको लिखाया है 790-681-4054। अच्छा ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब वो नमाज की तैयारी कर रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर हाँ में सेव कर दूंगा। जी जी मैं जी लिखा हूँ कागज, ठीक है, कोई बात नहीं है। कागज को लिखा हूँ इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं ठीक, आपके कॉल का अस्सलाम इंतजार करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ठीक है, हदाकल्लाह। जी